بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت غریب لوگ تھے، پر اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بچوں سے نواز دیا۔ میں جب بھی گھر آتا میری بیوی مجھے ہزاروں روپے دیتی، پر میں دیکھتا کہ میری بیوی کے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے ہوتے تھے۔ ایک دن میں گھر میں ہی چھپ گیا کہ دیکھ سکوں کہ میری بیوی سارا دن کیا کرتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو روز چار میرا نام منیر ہے۔ ہم گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا نام شبنم تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بھی بہت امیر نہیں تھے، پر ہمارے پاس تھوڑی زمین تھی۔ ہم 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ میری ماں کا ہی حکم چلتا تھا گھر پر۔ وہ پوتے کی شکل دیکھنے کے لیے بے چین تھی، پر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میری دونوں بھائیوں کی بیویوں کو خوب باتیں سناتی اور ان کا جینا حرام کر کے رکھتی۔ میری ماں کہتی تھی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا غصہ ہمارے گھر کی بہو پر ہی نکالتی تھی۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بہت سلیقے سے پسند کر کے لائی تھی۔ وہ دونوں بڑے گھر کی بیٹیاں تھیں، لیکن میں نے ایک غریب گھر کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی اماں سے شبنم کے بارے میں بات کی تو میری ماں بہت غصے میں ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے شادی کرنے کی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں کی دکھتی راہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس کے خاندان میں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی شادی کے پہلے سال ہی۔ شبنم کے اپنے بھی 5 بھائی تھے، وہ اکلوتی بہن تھی۔ میری ماں کو میں نے کسی طرح اپنی باتوں میں لگا لیا اور شبنم سے شادی کر لی۔ وہ میرے گھر میں آ گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ شادی کے 2 سال بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میری ماں نے شبنم کو بھی بہت تنگ کرنا شروع کر دیا، اور شبنم کو تو وہ زیادہ سے زیادہ باتیں سنایا کرتی تھی، کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے پسند کر کے لایا تھا۔ وہ دن بھر میری ماں کی باتیں سنتی روتی رہتی، تو مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہ جا سکا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا، اور میری ماں اتنا غصہ ہو گئی کہ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی اس وقت غصے میں آ گیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ میں شبنم کو لے کر گھر سے نکل گیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ ہمارے پاس گھر کا کوئی سامان تھا، نہ ہی کچن کا سامان، بس کچھ پیسے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ گاؤں میں بہت دور دوستوں نے میرے لیے اس گھر کا تالا توڑ دیا، اور سنسان علاقے میں ایک گھر تھا جس کا مالک کئی سالوں سے گاؤں میں نہیں آیا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے لیے اس گھر کا تالا توڑ دیا اور کہا کہ جب تک اس گھر کا مالک نہیں آتا تم لوگ یہاں ہی رہو، پھر بعد میں کوئی اور انتظام کر لیں گے۔ اس گھر میں کچھ سامان بھی موجود تھا۔ شبنم نے گھر صاف کیا اور مجھے میرے دوستوں نے مزدوری کا کام بتایا۔ میں کام کرنے کو راضی ہو گیا۔ جب سے ہم اس گھر میں آئے تھے تو شبنم خاموش ہی رہتی، پر بولتی تو صرف اتنا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے اس گھر میں سے چیزیں جمع کر کے اس مکان کو گھر جیسا بنا لیا تھا۔ 1 ماہ بعد ہمیں خوشخبری ملی کہ میری بیوی امید سے ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کے ہاں ایک ساتھ 7 بچوں کی پیدائش ہوگی۔ اس بات سے ہم تھوڑے پریشان ہو گئے کہ سب خیر سے ہو جائے۔ گاؤں کے سرکاری ہسپتال کی ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے ہماری بہت مدد کی اور اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بیٹوں سے نوازا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، پر دل میں 1000 فکریں بھی تھی کہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا خرچ کیسے پورا کریں گے۔ میری نوکری سے تو مجھے جو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم تھے۔ کیا پھر سے دوست کام آئیں گے؟ پر وہ بھی کب تک کرتے؟ کس طرح گرتے پڑتے 3 ماہ کا وقت نکل گیا۔ شبنم کی طبیعت بھی اب سنبھلنے لگی تھی، پر اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو تو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن میری ماں، دونوں بھائی اور ان کی بیویاں ہمارے گھر اچانک آ گئے۔ میں اچانک ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں نے میرے بچوں کو پیار کیا۔ وہ ان کے لیے کپڑے، دودھ، کھلونے، شبنم کے لیے کپڑے اور ہمارے لیے کھانا بھی لے کر آئی تھی۔ ہم نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بچوں نے بھی دودھ پیا اور سب ان سے پیار کرنے لگے۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ چلو برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ پر پھر میری ماں نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی کہ اب تم دونوں واپس گھر آ جاؤ، میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو اس کھنڈر میں رہتے ہوئے دیکھ کر وہاں سکون سے رہو، بس اب تم لوگوں کو اپنے لیے وہاں ایک اور کمرہ بنانا ہوگا، جگہ کم ہے نا، اور ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اپنے 2 بیٹے اپنے دونوں بھائیوں کو لکھ کر دینے ہوں گے، اور 3 بیٹے خود رکھ لو۔ ویسے بھی اکیلے 7 بچوں کو کیسے پالو گے؟
इस तरह सबको औलाद मिल जाएगी। मैं और शबनम हैरान रह गए। अम्मी यूं भी तो ये बच्चे हम सब के ही हैं, चाचू बाप जैसा और चाची माँ जैसी होती है। हमने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कह रही, तुम्हें बकायदा लिख कर देना होगा। मेरी माँ ने तो गोया फैसला सुना दिया, जैसे वो यहाँ सिर्फ इसीलिए आई थी। मैं अभी हैरान ही था कि शबनम ने उनकी लाई हुई चीज़ें उनके सामने रखी और कहा कि जो मैंने तकलीफ काटी है उसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब मैं तकलीफ में थी तब आप लोग क्यों नहीं आए, और अब आप अपने मतलब को आ गए हैं। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दूंगी, और औलाद कोई बांटने की चीज़ नहीं होती। चले जाएं यहाँ से, हम जिस हाल में भी रहें यह हमारा मसला है, आपका नहीं। कहूँ तो शबनम ने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी माँ ने हमें फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि इस बार तो बाकायदा बददुआ दी कि कभी सुकून से नहीं रहोगे, और वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैं और शबनम बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो यही था कि हम 7 बच्चों का खर्चा नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में हरगिज़ नहीं आ रही थी जो मेरी माँ करके गई थी। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता था। मैंने शबनम को यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूँगा। उसने भी कहा कि वो भी गांव में कोई काम तलाश करेगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठकर कर सकें, चाहे उसे किसी के जूते ही क्यों न बनाने पड़े। अगले दिन शबनम ने मुझसे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी सी ज़मीन है उसमें वो कुछ सब्जियां उगाना चाहती है, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ न कुछ तो मौजूद हो। शबनम सब्जियां उगाने के लिए ज़मीन साफ कर रही थी तो उसे मिट्टी में दबा हुआ एक मटका मिला। उसने उसको बाहर निकाला, उसको धोया और उसमें पानी डालकर रख दिया। वैसे भी इस घर में बर्तनों की कमी थी और पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाना एक बहुत अच्छी बात। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने अपने घर में नई नई चीज़ें देखना शुरू कर दी। मैंने शबनम से कहा कि इन चीज़ों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो उसने कहा कि मैंने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं, और मशीन भी मुझे एक औरत ने हमदर्दी के तहत दी है। एक दिन शबनम बैठने लगी तो उसके मुंह से आह की आवाज़ निकल गई। मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हें दर्द है? तो कहने लगी कि हाँ, मेरी टांग में थोड़ा दर्द है। जबकि मैंने देखा तो उसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। शबनम के पास हमेशा पैसे होते थे और वो पैसों से हमारे बच्चों के लिए चीज़ें खरीदा करती थी, लेकिन साथ ही ये भी देख रहा था कि वो रोज़ ही बीमार होती है और रोज़ उसके जिस्म पर कोई ना कोई जख्म लगा होता है जिसे वो मुझसे छुपा रही होती थी। और साथ ही मैं ये भी जानता था कि हम जिस घर में रहते थे वो गांव से बहुत दूर था और उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर इस गांव में इतनी दूर औरतें इसको कपड़े सिलवाने कैसे आ सकती थी? घर में मैंने तो कोई मशीन भी नहीं देखी थी, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? एक दिन मैं काम से वापस घर आया तो मैंने शबनम को ज़मीन पर पड़े देखा। वो बेहोश हो गई थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने उसे जगाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लटाया और मेरे दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने उसे कहा कि शबनम, इस घर में तो सीढ़ियाँ नहीं हैं। उसने मुझे हैरान होकर देखा और ये कहकर सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे शबनम पर शक हो गया था कि गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई। एक दिन मैंने उसे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। शबनम बेखबर थी कि मैं घर में ही छुपा हूँ। मैं उस पर नजर रख रहा था। उसने हमारे बच्चों को खाना खिलाया, उनके कपड़े बदले और उन सबको सुलाकर वो अपने काम में लग गई। फिर मैंने उसे एक नहायत ही अजीब हरकत करते हुए देखा। मैंने देखा कि उसने मटके को अपने सामने रखा और अपने एक हाथ में छुरी ले ली। वो उस मटके के सामने बैठ गई। शबनम मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी कि सब्जी काटते हुए अचानक उसकी उंगली कट गई। उसे बहुत दर्द हो रहा था। काम करते हुए अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि शबनम एक छोटे टेबल के ऊपर चढ़ी जिसको पानी और गड़े रखने के लिए बनाया गया था, और उसने वहां से छलांग मार दी। वो जमीन पर गिर गई। उसके पैर और कोहनियों पर चोट लगी और वो दर्द से कुराहने लगी। वो कुछ देर जमीन पर ही पड़ी रही। बामुश्किल उठी और जाकर मटके में हाथ डाला तो उसके हाथ में कुछ नोट आ गए। मैं हैरान परेशान रह गया और फौरन उसके सामने आ गया। वो मुझे देखकर बुरी तरह डर गई। मैं भी उसे देखकर बहुत हैरान था। मैंने उसे कहा कि मैंने सब ये देख चुका हूँ, ये तुमने जो अभी किया है। उसने फौरन जाकर घर के अंदर मुझे बंद कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर दिए और मुझे चुप रहने का कहा। उसने मुझे एक तरफ बिठाया
और बताया कि मुझे यह मटका बाहर ज़मीन से मिला था। मुझे लगा कि ये एक आम मटका है, इसलिए मैंने उसमें पानी डालकर रख दिया। लेकिन एक दिन मैं इस मटके के सामने बैठी थी और मेरे हाथ पर छुरी लगी। मैंने देखा कि इस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गिर गए हैं। मैं हैरान परेशान रह गई। फिर मैंने अपना हाथ दीवार पर मारा तो उस मटके में से कुछ और नोट बाहर निकले। इसके सामने खुद पर जितनी जोर से तशद्दुद करती उतनी ही रकम बाहर गिर जाती। जरूर ये कोई जादुई मटका है। कुछ दिन से मैं खुद को मार रही हूँ और इसमें से रकम निकाल रही हूँ। मैं अपनी बीवी को देखकर हैरान था। वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं देख चुका था कि यह सब कैसे हो रहा था। मैंने 2 पल उस मटके की तरफ देखा और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर जोर से वार किया। उस मटके में से कुछ नोट उड़कर बाहर गए तो मैं हंसने लगा कि ये तो हमारे हाथ खजाना लग गया है। बीवी एक हफ्ते से ये सब कर रही थी। उसने काफी सारे पैसे जमा कर लिए थे जो उसने मुझे दिखाए। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मटका उन्हीं लोगों का था जो इस घर में रहते थे। अगले दिन मैं उस घर के रहने वालों के हवाले से कोई मालूमात हासिल करने अपने उसी दोस्त के पास गया। उसने बताया कि इस घर में जो लोग रहते थे वो तकरीबन 30-40 साल से वापस नहीं आए और ना ही कोई उनकी औलाद इस घर में आई है। कहा जाता है कि यहाँ जो लोग रहते थे वो थोड़े पागल थे। वो अपने ही घर में मुर्दा हालत में मिले थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं इस घर में थोड़ी मरम्मत करवाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस घर के हवाले से अगर कोई पूछने आया तो वो गांव का पटवारी होगा, उसको कुछ पैसे देकर चुप करवा देंगे। जो काम मेरी बीवी एक हफ्ते से कर रही थी वो मैंने भी करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि हम इस घर के लिए कुछ सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए कपड़े, दूध और ज़रूरत की चीज़ें भी। लेकिन हम दोनों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हमारे जिस्म पर जगह जगह जख्म हो गए थे। हमें कुछ दिन आराम की ज़रूरत थी। मुझे खबर मिली कि गांव में कुश्ती हो रही है और वहां पर शहर का बहुत मशहूर पहलवान आ रहा है और जो भी उस पहलवान से लड़ेगा उसे बहुत बड़ी रकम दी जाएगी। मैंने अपनी बीवी को कहा कि हमें यहाँ जाना चाहिए। मैं उस पहलवान से लड़ाई करूँगा और यह मटका दौलत से भर जाएगा। मैं उससे जीत तो नहीं सकता था, लेकिन अपनी हिम्मत के मुताबिक मार जरूर खा सकता था और इस तरह मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। हम दंगल देखने गए और मैंने उस पहलवान को ललकार दिया कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। मुझे उस पहलवान ने बहुत मारा, मुझे उठाकर जमीन पर मारा। मेरी बीवी लोगों में बैठी थी और उस मटके को एक काली बोरी में डालकर रखा था। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मुझे उठाकर लोग घर तक छोड़कर गए, पर मैं बहुत खुश था क्योंकि वो मटका पैसों से भर चुका था। रात मेरी बहुत बुरी गुजरी। मैं रात भर दर्द से कुराहता रहा। हम लोगों ने इरादा कर लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं और हम इस मटके को रख देंगे और फिर कभी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। अब कुछ दिन हम सिर्फ आराम करेंगे और इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमने घर को भी ठीक करवा लिया था और अब वो घर की तरह लगने लगा था। मैंने गांव के पटवारी को इतने पैसे दिए कि उसने वो घर मेरे नाम लिख दिया और ये घर भी मेरा हो गया था। मैंने एक टांगा भी ले लिया जिसको मैंने किराए पर दे दिया और उस टांगे से भी रोज की आमदन आने लगी। उसके अलावा मैंने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान भी बनाई जिस पर मैं रोज बैठ जाता और वहां से भी कुछ आमदन आ जाती। अब हमारे हालात अच्छे हो गए थे। सारा खानदान हमारे बारे में बात करता कि इनके अचानक से लगता है लॉटरी निकल आई है। किस्मत वाले थे। उनके बेटे भी बहुत किस्मत वाले हैं। अल्लाह ने 7 बेटे दिए तो फिर उन 7 बेटों का रिज़्क भी तो देना था। कहने को तो हमारे हालात ठीक जा रहे थे और अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। लेकिन दौलत का नशा एक ऐसा नशा है कि जिसकी कोई हद नहीं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बार बार उस मटके को इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत दौलत आ गई थी। हमारे सारे छोटे छोटे ख्वाब जिनको हम पूरा ना कर सकते थे हम पूरे कर चुके थे। लेकिन अब भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। हम रोज़ एक दूसरे से कहते कि दोबारा इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आखिरी बार। लेकिन फिर अगले दिन हम इसे इस्तेमाल करते और दौलत जमा करके अपने पास रख लेते। हम पर गोया एक जुनून सवार हो गया था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा आदमी आया। उस दिन मैं घर पर ही मौजूद था। जब मैं घर से बाहर दरवाज़ा खोलने आया तो मैं लंगड़ा कर चल रहा था और मेरे सर पर भी पट्टी लगी थी। मैं उस आदमी को घर के अंदर ले आया।
उसने घर को देखना शुरू कर दिया। आपने इस घर को काफी सही करवाया है, पर आप यहाँ किससे पूछकर रहते हैं? तो मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि यह घर हमने मजबूरी में इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इस घर को मैं अपने नाम लिखवा चुका हूँ। अगर आपको यह घर वापस चाहिए तो आपको मेरे साथ एक केस लड़ना होगा, और आप तो जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के केस 40 साल तक तो चलते ही रहते हैं। आप इस घर को भूल जाएं। मैंने कहा तो वो शख्स हंस दिया और मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि इस घर को मैं मुफ्त में भी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ना लूं, और इसके लिए तो केस लड़ना दूर की बात है। इस घर में मेरी कोई भी अच्छी याद नहीं है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने महसूस किया कि इस घर में शायद कोई रह रहा हो, इसलिए मैं देखने चला आया। बात करते करते उसकी नज़र उस मिट्टी के मटके पर पड़ी। वो हैरान और परेशान रह गया और हम दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगा। मेरी बीवी चाय लेकर आ रही थी। वो भी हैरान हो गई कि ये आदमी इस तरह इसे क्यों देख रहा है। ये तुम लोगों को कहाँ से मिला? क्या तुम लोग इसे इस्तेमाल करते हो और कितने दिनों से इस्तेमाल कर रहे हो? हम दोनों ने अनजान बनने की कोशिश की और कहा कि आप क्या बात करते हैं, ये तो एक आम मिट्टी का मटका है जिसे हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि ये कोई आम मटका नहीं बल्कि एक जादुई मटका है जो मेरे सारे खानदान को निगल गया। यह सुनकर हम हैरान रह गए। उसने बताया कि मैं और मेरा सारा खानदान इस घर में रहता था। मेरे 2 बेटे थे, उनकी बीवियां भी थी। मेरी बीवी, मेरे पोते पोतियां भी थे। हमें ये मटका हमारी ज़मीन में दबा हुआ मिला था। फिर हमें मालूम हुआ कि ये एक जादुई मटका है जिसके सामने खुद को तकलीफ पहुंचाई जाए तो ये उस तकलीफ के मुताबिक आपको रकम देता है। हम लोग भी बहुत गरीब थे पर इस मटके की मदद से अमीर हो गए। ये घर जो इतना बड़ा तुम लोग देख रहे हो, ये बड़ा घर नहीं था बल्कि मिट्टी की एक झोंपड़ी की सूरत में हमने यहाँ बनाया था। लेकिन फिर हमारे पास दौलत आने लगी और हमने उसे एक घर की शक्ल दे दी। बाहर के आसपास की सारी जमीन हमने खरीद ली और उस पर काश्तकारी करने लगे। सभी अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर उसमें से रोज दौलत निकाला करते थे। लेकिन फिर मेरे बेटों में उस मटके को लेकर फूट पड़ गई। मेरे घर में लड़ाइयां होने लगी। बीमारियों ने हमारे घर को देख लिया, लेकिन उन बीमारियों से बचने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे हासिल करने के लिए खुद को तकलीफ देनी पड़ती थी। हम सब लोग बहुत बीमार और जख्मी रहने लगे थे। हमारी हालत ऐसी हो गई कि जैसे हम इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, जिस्मों पर जख्म जो पहले ठीक ना होते और फिर हम दोबारा और जख्म बना लेते। इस मटके के पीछे मेरे दोनों बेटों ने आपस में लड़ाई की और एक दूसरे को जान से मार डाला। मेरी बहुएं बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम हो गए। मेरी बीवी अपने बच्चों की मौत को देखकर पागल सी हो गई। मेरी बहू अपने अपने बच्चे लेकर अपने घरों को वापस लौट गई और मैं अपनी बीवी को लेकर इस घर को छोड़कर चला गया। मैंने इस मटके को इसी जगह मिट्टी में दबा दिया जहाँ से यह मुझे मिला था और इस बात को भी 15-20 साल हो गए हैं। मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी एक बेटी के घर में रहता हूँ। यह मटका आपको दौलत तो देता है, लेकिन आपको दौलत हासिल करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक मालिक की तलाश में होता है और उस मालिक को दौलत के लिए इतना पागल बना देता है कि वो अपनी जान खुद ही ले लेता है और फिर ये किसी और मालिक की तलाश में निकल जाता है और ये किसी न किसी तरह मिल ही जाता है। जैसे पहले हमें मिला था और अब तुम लोगों को मिल गया। उस आदमी ने हमारे बेटों की तरफ देखा और उसने कहा कि तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? तुम लोगों को अल्लाह ने इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, अभी तुम लोग जवान हो। इस मटके को वापस जमीन में दबा दो। इसको तोड़ा तो नहीं जा सकता। तुम लोगों ने शायद इसको तोड़ने की कोशिश भी ना की होगी। मैंने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की पर इसको तोड़ा नहीं जा सकता था। इसका यही हल है कि इसको जमीन में दबा दिया जाए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि वाकई हम खुद के साथ क्या कर रहे थे। अगर कल को हमें कुछ हो जाता तो हमारे इन बच्चों का क्या होता? हम लोगों की हालत बिल्कुल मरीजों में हो गई थी जो मुश्किल से अपने कदमों पर चल रहे थे। तुम लोग इस घर में रहो, मुझे ये घर नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी सब कुछ है। तुम लोग इस घर में ही रहो। तुम लोगों ने अपना कोई कारोबार बनाना है तो वो भी बनाओ, लेकिन इस मटके को जमीन में दबा दो। वो आदमी हमें समझा कर चला गया। मैंने उस मटके को उठाया और सोचा कि इसे वापस दबा दूंगा, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोक दिया। मैं हैरान और परेशान रह गया कि क्या अब ये यही सब करना चाहती हैं। तो उसने कहा कि इसको यहाँ नहीं बल्कि कहीं बहुत दूर दफना कराओ, नहीं तो हम फिर इसकी तलाश में निकल पड़ेंगे। वो ठीक कह रही थी, उसे कहीं बहुत दूर दफना कर आना चाहिए था।
میں نے ایسا ہی کیا اور اس کو بہت دور دراز علاقے میں بہت گہرائی تک دفنا کرایا۔ اب ہمارے پاس کرانے کی دکان بھی، ایک سواری بھی اور اللہ کے دیے خوبصورت بیٹے بھی ہیں۔ ہمارے لیے ہماری اولاد ہی ہماری دولت ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔